लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Suppose you have got selected in your NEET. Now, 90% of people will be jealous of you. 90% will actually hate you for achieving that target, and rest 90 will actually be यार क्या कर दिया, बेकार चीज कर दी. Only 10% of people will actually be happy for you, and out of those उसमें आपके parents, आपके closest family members, and maybe some of your best friends भी होंगे. Now, for whom should you care for? Those 10% or 90%? But जो हम सबसे बड़ी mistake कर रहे होते हैं, ना तो majority लोग कर रहे होते हैं, that we run after those 90% and not after that 10%. Hi everyone, I am Dr. Shivang. And I'm Dr. Kanaka. And welcome back to Dr. Do. So as he told you that there are like 90% of people who would be very jealous of your own success, we are mostly running behind them. है ना, उनकी बातों में हम ज्यादा आते हैं, जो वो बोलते हैं हम उन्हीं की बात ज्यादा सुनते हैं. इफेक्ट भी उन्हीं से होता है. Right. And if I just talk about my NEET UG PG thing, when I was doing my MBBS and I always wanted to do derma, knowing that derma was always the top branch, people used to literally laugh कि यार तुम private college से हो and you're planning to get into a government college and moreover you're planning to get derma. तो मतलब वो ऐसे ही समझते थे, मॉक करते थे कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम प्राइवेट से तो प्राइवेट में ही जाते हैं लोग. शुरू से आपको वो माहौल बना देते हैं कि क्यों मेहनत करो, टाइम वेस्ट मत करो तैयारी में, मस्ती मारो, आगे जाके तो प्राइवेट ही लेनी है ना. राइट. और पहले अटेम्प्ट में इफ यू आर टारगेटिंग तब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. राइट. सो इट्स लाइक ये हर कोई फेस करेगा एंड तो ये चीज की वजह से तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो एंड इन रिटर्न यू ऑल्सो फॉरगेट योर पोटेंशियल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स. सो नाउ इफ आई वॉज एबल टू क्रैक नीट PG in my first attempt, it was only possible because I did not listen to any one of those people. The reason why I cracked my NEET PG and I also shut down everyone was this only कि मैं लोगों की बातों में ना हूँ. जब मुझे अपना 1 year मिला of that internship time when I had to crack my NEET PG वाला preparation phase जो भी होता है, so also during my preparation phase, just because I didn't want to hear all of these noise और जो भी ये चटर-पटर लोग करते रहते हैं, to shut the noise मैंने अपना सारा मोबाइल फोन बंद कर दिया था, मैं सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो गई थी. I was not talking to even my friends that entire 1 year. And also not just this, मैंने बहुत ही मतलब मैंने किसी except for my parents किसी को भी नहीं मैंने बताया था कि I was seriously preparing for the NEET PG entrance exam. Obviously since I was going to a coaching institute, preparing for my entrance exam, लोगों को पता था, बट मैंने कभी ये नहीं बोला था कि मैं सीरियसली प्रिपेयर करी. क्योंकि क्या होता है कि लोग इतना कुछ तुम्हें बोलते हैं जिसकी वजह से rather than being motivated, you demotivate yourself कि हाँ यार कैसे करेंगे, जब कोई नहीं कर पा रहा तो हम कैसे करेंगे. So just because I wanted to crack, I had just shut down everything and that is how I could crack my NEET PG in my first attempt. Well, I had a different sort of thing. मुझे I always knew कि whatever I do, people will say negative thing, whether if I am preparing और कल को मैं बहुत successful हूँ तब भी लोग बोलेंगे ही. So like everyone knew मैं prepare कर and I never tried to hide it also. But जो लोग negative बोलते थे, मुझे भी बहुत बोला है, like she said कि लोग बोलते तो private क्यों नहीं कर पाओगे. But I used to take that as a spark. That used to actually ignite. जितना वो और बोलते जाते ना, वो मेरे अंदर और positive energy में convert होता जाता कि यार I will crack PG and shut everyone's mouth at a time कि मुझे सबको गलत प्रूफ कर देना एक साथ. So that actually ignited a fire in me. जितना लोग बोलते हैं I would convert that negativity into positivity and then work harder कि यार ठीक है बेटा अभी बोल लो, 1 year और रुको, let me give my entrance, my result will speak everything for me. Right, and this fire is not just कि वो 1 साल का फायर तो I think जब NEET UG नहीं क्रैक हुआ था तब से ही था. पूरे 5 years ही फायर था MBBS के कि भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए PG तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी ही करनी है. So I think that fire is very important for you to crack any kind of entrance exam. Don't find motivation outside, find the motivation inside you. It is like lying there, बस तुम्हें थोड़ा सा उसको ignite करने की जरूरत है. एंड जो गाइज इफ यू आर स्केर्ड कि ये नेगेटिव बोल रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू. हाउ कैन यू डाउट योरसेल्फ ऑन वर्ड्स ऑफ अदर. यार सामने वाला बोल रहा है तुझसे PG नहीं होगा, दैट ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. ही नोज हिज पोटेंशियल, भाई उससे नहीं होगा इसलिए वो चाहता है किसी और से ना हो. ही डजंट नो अबाउट यू, ही डजंट नो अबाउट योर पोटेंशियल, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू, क्या आपके अंदर काबिलियत है. ही डजंट नो दैट. बट इफ ही इज सेइंग समथिंग दैट इज अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पोटेंशियल, बट उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज उसके वर्ड से इफ यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, again you are pushing yourself back because of some idiot or some fool
who actually doesn't want you to succeed. अच्छा, now after all of this you feel कि very relaxed कि finally तुम्हारे को नीट पीजी में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया. Then also life is not at all simple. What happened in our case, first of all, मतलब I think इसके साथ नहीं हुआ, पर मेरे साथ बहुत हुआ. In my previous college, उसमें बहुत लोगों ने assumptions create करे, इसके तो जुगाड़ था, तभी इसने क्लियर कर लिया और मतलब कुछ, हाँ, right. तभी भी मैं रैंक कुछ 2000s में लाई rather than coming into like first 1 digit or 2 digit. तो वही इतना ज्यादा ये चीज हुई कि इसने बस जुगाड़ से कर लिया. क्योंकि haters तो haters ही रहेंगे यार. They have nothing else to do, right? Right, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करें, बट दैट रियली डिड नॉट मैटर. देन व्हेन आई केम ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने बोला प्राइवेट कॉलेज के बच्चे ये इन्हें कुछ नहीं आता होगा, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनको कोई क्लिनिकल स्किल्स नहीं होंगे, इन्हें कोई स्किल्स ही नहीं है, ये तो बस आ गए कुछ ना कुछ करके ही आए होंगे. तो ये चीज काफी हम लोगों को बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, राइट? यू कैन नॉट एक्सेप्ट द सक्सेस ऑफ अदर्स. वो चुभती है. हाँ, एंड स्पेशली जब उन्हें ये देखिए कि भाई ये लोग तो प्राइवेट के थे, ये वो हमारे लेवल के आ गए, तो वो थोड़ा लोग मतलब एक्सेप्ट करने में डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना. तो इस चक्कर में हमने काफी सुना भी, एंड मोर ओवर फिर हमारे पास यूट्यूब चैनल भी था, तो यूट्यूब के चक्कर में भी बहुत सुना कि ये तो यूट्यूब भी कर रहे हैं साथ साथ. Then again, when we started with the YouTube channel, there was so much of negativity and like everyone demotivated us so much. We used to get comments like, YouTube कहाँ करोगे? YouTube तुम्हारे लिए थोड़ा ना होता है यार, वो यूट्यूबर्स अलग ही होते हैं यार तुम तो रेसिडेंसी कर रहे हो, उसमें कहाँ यूट्यूब करने का टाइम मिलेगा? टाइम निकालना तुम लोग के बस की बात नहीं है. यूट्यूब तो एक्टर्स और इन सब के लिए होता है, तुम लोग यूट्यूब में बच जाओ, काम पे ध्यान दो, ठीक है? यूट्यूब तुम लोग डिस्ट्रैक्शन एंड व्हाट नॉट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ मिलने को मिला. लाइक जस्ट ट्रस्ट अस. एंड क्लोज लोग से भी, नॉट ओनली फार, जो क्लोज लोग थे उनको पता चल जाता था. कई तो हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स तक ने सब्सक्राइब नहीं किया करने का, क्योंकि ऐसे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मतलब ऐसे बोलते थे ये क्या बेकार काम मैं नहीं करता, ऐसे लाइक you used to get those type of comments यार. So you can imagine that negativity, that hate when someone sees you're doing some good work or even trying to do something new. उन लोगों की यार जल जाती है, to be honest. But then again, had we listened to them, या अपने आप को रोक लिया था, सोच लिया होता, कॉन्शियस हो गए होते कि यार we should maybe not start or maybe we should postpone it, then I'm sure हम लोग उस पर नहीं पहुंच पाते. Today we have reached 100K, we have actually crossed it. With your love and support, of course, we managed to win it. Then we have also started a new channel successfully, all because we just went for it without listening to anybody. So when we say go and pursue your passion, we don't mean कि आप blindly जाके कुछ भी pursue करना start कर दो क्योंकि आपको उसमें interest है. Because to pursue something seriously or make it as a career, you need to have a certain set of skills, a certain set of knowledge about it. तभी आप उसमें आगे जाके बहुत successful हो पाओगे. क्योंकि passion तो हमें बहुत चीजों का होता है यार, but अगर उसके बारे में हमको in depth नहीं पता, उस चीज के skills develop नहीं है, you cannot be successful in it, right? So even we have a very interesting story of our own YouTube channel. Like बचपन से ना I was a big fan of Marcus Brownlee. उसके सारे टेक वीडियोस, सारे टेक रिव्यूज एंड ऑल मैं हमेशा सारे देखता आया हूँ. सो बहुत इंटरेस्ट था कि दैट आई वुड आल्सो मेक अ YouTube चैनल एंड आई वुड रिव्यू टेक. YouTube चैनल टेक का तो नहीं बना, बट जो हमारा अभी चैनल है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आई हैव लर्नड ऑल द फंडामेंटल्स, ऑल द बेसिक्स from his own class, that is YouTube Success, Script, Shoot and Edit with MK PhD on Skillshare. In this class उसने बहुत अच्छे से बता रखा है how you should actually script your videos, how they should be planned properly, how they should be presented and edited so that the audience actually loves it. So एक mindset बहुत अच्छा डेवलप हो गया था, एंड जो हमारा YouTube की जितने भी skills डेवलप हुई है वो डेफिनेटली इस क्लास की वजह से ही है. Yeah, right. Skillshare is one of the leading online learning community where you can learn a lot of things, like any class you want that is available, be it photography, artistry, gardening, anything. So you can definitely enhance your skills by Skillshare. एंड नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ में यही लगता है कि यार ऐसी क्लासेस के लिए तो बहुत मनी चाहिए होगा, एंड यू एक्चुअली डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी. बट लेट मी टेल यू, इसमें इट इज ओनली 2000 rupees per annum. That makes it around 166 rupees per month. So it is not that expensive. इतने का तो अगर हम कुछ खाने का ऑर्डर भी करते हैं ना तो इतने का ही हमारा बिल आ ही जाता है. तो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हैं इसके लिए. We also have a customized link mentioned below in the description box, so you can go click it, and the first 1000 students will get free 1 month trial. So you can definitely go and check it out and join this community and enhance your skills. True. And I think most of the people also, due to the fact that लोग हंसेंगे और लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, they just do not try. So for example, a very simple and basic example, most of the times people do not study standard books just because सारे बैचमेट्स हंसेंगे,
or maybe when you are somewhere with others and you are free and you're getting bored, you have nothing to do, and even if you want to like study इस टाइम पे, you do not thinking कि यार सब बोलेंगे अरे कितना पढ़ाकू है यार, क्या पढ़ रहा है वो, है ना, मतलब, and I completely understand ये सबके साथ होता है, तो हर कोई नहीं ऐसा सबके सामने शो कर पाता, तो इस चक्कर में हम अपनी पोटेंशियल को कम करते, डिक्रीज करते, एंड इन द एंड हु इज एट द लॉस? वी. एंड एमबीबीएस में तो आई थिंक मैक्सिमम लोग स्टैंडर्ड बुक्स इसीलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज सीनियर्स पहले ही डरा देते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि यार नहीं होगा, छोड़ दो, कैपेबिलिटी नहीं है या कोई फायदा नहीं पढ़ने का. नो वन एक्चुअली इवन ट्राइज कि वह पढ़ के देखा जाए, इफ आई एम लाइकिंग देन मे बी आई शुड गो फॉर इट, राइट. सो वी एक्चुअली अपने आप को एक बैक स्टेप ले लेते हैं. गाइस, अब कोई मान लो इफ आई से समथिंग यार तू पागल, तेरे से नहीं होने वाला ये, दो चीज हो सकती है. जो 90% लोगों के साथ होता है उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि अच्छा इसने मुझे नेगेटिव बोला, ये निकाला चप्पल थाने ने मार दिया या मुक्के मार दिया, बट दैट इज एक्चुअली नॉट गोना हेल्प एट ऑल. इफ समवन इज सेइंग ये आपसे नहीं होगा, मे बी सेइंग समथिंग नेगेटिव, ईगो हर्ट मत करो, कीप दैट थिंग इन माइंड एंड जस्ट इग्नाइट दैट पैशन एंड फायर विद यू कि यार अब इसको उल्टा करके दिखाते हैं. एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब आप वो करके आप बस सिंपल से साइलेंटली बोल दोगे यार मेरे से हो गया, सामने वाले की तो लग जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दैट इज हाउ यू शुड आंसर बैक. True. So it's just that you have to answer by your own success, not by the noise. It's always said that the coins make more noise than the notes. So it's like if we talk about currency, it is always the notes which have higher value than the coins. So you have to become the notes, not the coins in this case. Also believe in yourself, and then there will be a day when people would have no other choice than believing in you. So it's just that if, for example, today Elon Musk says that he wants to build a car which runs on water rather than Maybe fuel, air. है ना, तो हम मान जाएंगे because he is saying it. But if suddenly some newcomer says or some other person says, या even if I say कि मैं आज एक कार बनाऊंगी जो फ्यूल की जरूरत नहीं है, उसको पानी की जरूरत है, तो हम थोड़ा मतलब वी वुड फील कि यार ये थोड़ा चेकअप करवाओ यार, क्या कैसी बातें कर रहे हैं ना. सो इट्स जस्ट दैट वे. यू नीड टू बिलीव इन योर थॉट्स, पुट इन एक्शन, एग्जीक्यूट इट, एंड देन डेफिनेटली अदर्स विल बिलीव इन दैट ड्रीम टू. And guys, it is also said, doubts kill much more dreams than failure ever will. This is such a good maxim यार, मतलब इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है. हम जब डाउट में आ जाते हैं ना कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो हम प्लान को ही छोड़ देते हैं. सपोज आई हैव अ वेरी गुड प्लान, सपोज आई हैव अ वेरी गुड बिजनेस प्लान, एंड इफ आई स्टार्ट डाउटिंग माय ओन प्लान एंड मुझे लगे कि पता नहीं होगा कि नहीं, ये जो पता नहीं वाला फैक्टर आता है, मे बी आई इवन स्टॉप डूइंग दैट, एंड मे बी कोई और उसको इंप्लीमेंट करके एक बिलियनर बन जाए. आपके पास वो प्लान था बट यू डिडंट इंप्लीमेंट इट. व्हाई? बिकॉज यू डाउटेड योरसेल्फ. सो ये डाउट अच्छी चीज नहीं है, एंड वो डाउट आता कहां से? और लोग की नेगेटिविटी सुन के, और लोग के मतलब जो लोग सपोर्ट नहीं कर पाते उसके वजह से. सो ये नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव थॉट समथिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट, यू शुड बी श्योर अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट. ज्यादा से तो नहीं चलेगा ना यार, हट जाओ, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू ट्राइड. True. So in short, this is just you need to stay away from the toxic people, and लोग कुछ भी करें बस उन्हें शट करो, उनको उल्टा जवाब देने की कोई पॉइंट नहीं है. योर रिजल्ट वुड गिव द रिप्लाई itself. So let the other people say anything they want to. Always create a company which is supportive to you, which would give you guidance, and which would always be a well-wisher, rather than creating a company which is bad for you, which is not thinking good for you, right? So yahi hai. I think this is it for today's video. We hope that we have answered the most requested question by you all, that how to deal with toxic people. Yeah. So yeah, we hope that we have helped you all. So do not forget to like, share and subscribe to our channel, and let's make this channel a very big success together, because Why should not? Because of all the fun. Bye guys. bye everyone.